So we are continuing with PNC. Let us begin with question number 1 of lecture number 30. Now see, this question it has asked you, if two boys and two girls are to be arranged in a row so that the girls are not next to each other, how many possible arrangements are there? So we have done such type of problems in classes also. In such questions, you cannot use the method by arranging them. Okay, if I take boy 1, boy 2 and girl 1, girl 2, it will be very difficult for me to arrange. So what we will do here is we will use the negative approach. The negative approach in the sense, what are the possible arrangements I can do out of all these 4 people? I can do a 4 factorial arrangement. We know that. From that, if we subtract by keeping them together, it has asked you that girls are not next to each other. What I will do is I will do all the total arrangements and I will subtract all those arrangements where the both girls are together. Both girls are together. Now to keep them together, what I will do is I will tie them. So I will tie them, girl 1 and girl 2, and keep the boy 1, boy 2 as it is. So in this case, the total arrangement will become what? 4 factorial minus, I will consider them as 1 unit. The rest are 2 units. So total arrangement will be 3 factorial into, these girls can also arrange among themselves since they are in a box right now. Got it? You take them from one place to another. They are together, but they can change their positions. So what will happen is there will be a 2 factorial arrangement also. So what will be the answer? 4 factorial is 24 minus 3 factorial is 6 into 12. That is 6 into 2. This is 12. 24 minus 12. The answer will be 12. Right? Got it? Clear? Let us go to question number 2. These seating arrangements are typical PNC questions. You need to have that command over them. Now here, what is the total number of digits printed? Be very careful while reading this question. Total number of digits. कितने digits होंगे? If a book containing 150 pages is to be numbered from 1 to 150, this can be a PNC question. This can also be a number system question. Okay, you cannot segregate such questions. So 1 से लेके 150 तक कितने types of numbers है आपके सामने? 1 से लेके 9 तक कुछ नंबर्स होंगे, फिर 10 से लेके 99 तक कुछ नंबर्स होंगे, फिर 100 से लेके 150 तक कुछ नंबर्स होंगे. Are you getting it? These are all single digit number. These are all 2 digits number. These are all 3 digit numbers. How many numbers are there here? 9 minus 1 में बताया था आपको एक बार. 9 minus 1 will be 8. 8 plus 1 करना है 9. Total 9 numbers. How many numbers here? 99 minus 10 is 89 plus 1. 90 numbers. How many numbers here? 50. 50 के बाद एक प्लस 1 करना है. 51 नंबर्स हियर. राइट? 9 में कितने टोटल डिजिट्स? 9 डिजिट्स. 90 में टोटल कितने डिजिट्स? हर एक नंबर के पास 2 डिजिट्स है. सो 90 में कितने डिजिट्स? 180 डिजिट्स. 51 में कितना मल्टीप्लाई करना है? 3 मल्टीप्लाई करना है. दैट विल बी 153. राइट? तो 9 3 12. 2 यहाँ आएगा. 2 दो जगह पे है. ओके, सो 2 कैरी 1 8 1 9 9 5 14 4 carry 1, that is 342. So your answer is 342. राइट? ये दोनों आंसर नहीं होंगे. आई होप यू हैव गॉट इट. अगर 51 नंबर्स है, ईच नंबर के पास 3 डिजिट्स है, सो 51 नंबर के पास कितने डिजिट्स होंगे? इंटू 3 यानी 153. इस तरह 90 डिजिट्स है. 90 के पास हर एक के पास 2 डिजिट्स है, सो 90 के पास 180 डिजिट्स होंगे. क्लियर? 9 नंबर्स है, हर एक नंबर के पास एक डिजिट है, सो 9 नंबर के पास 9 डिजिट्स. टोटल को ऐड कर दो. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 342 विल बी योर आंसर. क्लियर? ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. ये वाला क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, बट इस साल एक क्वेश्चन सेम डायमेंशन पे आया था, मतलब सेम लॉजिक पे आया था. एंड we have done that question verbatim in the class also. So those who have done last year classes, I have told them a hexagon wala question, and it was a verbatim. That question came in the exam also. Okay, now what was the question? How many diagonals can be drawn by joining the vertices of an octagon? We know the logic. The logic goes like this. Number of diagonals निकालने के लिए अगर हमारे पास n vertices है,
हम कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉ NC2 लाइंस, सिंपल, n points are there, how many lines? NC2, but out of those line there would be n sides of the diagram, n sides of the polygon. उसको अगर हटा देते हैं, जो मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स. सो योर आंसर वुड बी NC2 minus n. n यहाँ पे कितना है? ऑक्टागन 8 है. 8C2 minus 8 will be your answer. So 8C2 will be 8 into 7 by 2 minus 8, 56 by 2 यानी 28 minus 8. So your answer would be 20. क्लियर? इस तरह का एक क्वेश्चन इस साल भी आया था, मतलब लास्ट ईयर. उसका था हेक्सागन. सो हेक्सागन में कितना होगा? 6C2 minus 6. 6C2 will be 6 into 5 by 2 minus 6. 6 into 5 is 30 by 2, 15. 15 minus 6 यानी 9. So 9 diagonals. Why are we subtracting n? देखो, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स पे आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो लाइन जब आप ड्रॉ करोगे, किसी दो को पिक करोगे, तो इट विल बी 4C2, पिकिंग एनी टू आउट ऑफ द 4 पॉइंट्स. उसमें से जो आप पिक कर रहे हो, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ए को फिक्स करके आपके पास एक ये भी लाइन है, एक ये वाला लाइन है, एक ये लाइन है. तो आप देखो, दो साइड्स तो बन रहे हैं. तो यहां से हम क्या करेंगे? 4 साइड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दिस डायग्राम हैज 4 साइड्स. So your answer would be 4C2 minus 4, which will give you the number of diagonals. Clear? Got it? Let us proceed to the next question. This will be question number 4. While writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digits at the 100th place is greater than the digit at the 10th place is greater than the digit at the unit place? इस तरह के कितने नंबर्स होंगे? बहुत ही आसान सवाल है. यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू फाइंड अ सीक्वेंस. while solving always keep an eye on the sequence formed. तो ताकि क्या होगा कि आपका सॉल्विंग पार्ट कम हो जाएगा. कैसे? देखो, आपको निकालना है 700 से लेके 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जिसमें आपका 100 प्लेस इज ग्रेटर देन द 10th प्लेस इज ग्रेटर देन द यूनिट प्लेस. लेट मी स्टार्ट विद द 700 से लेके 800 के बीच में. 700 से लेके 800 के बीच में अगर मैं फिक्स करता हूं 7, तो 10th प्लेस में कौन आ सकता है? 10th प्लेस में 1 आ सकता है. चेक करो. 10th प्लेस में फर्स्ट नंबर 6 आ सकता है. 6 अगर आ रहा है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है. अगर 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 के साथ कितने केसेस बनेंगे? यूनिट प्लेस कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए. 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है. कितने केसेस? 6 केसेस. 6 के लिए 6, 5 के लिए 5, 1 के लिए भी 1. आर यू गेटिंग इट और नॉट? 0 भी एक केस आ सकता है, बट वो 0 नहीं होगा, क्योंकि 700 से लेके 1000 के बीच में अगर यहाँ पे आप 0 डाल दोगे, तो यहाँ पे उससे कम अलाउड नहीं है, राइट? तो 1 तक ही जाएगा. आई होप यू हैव गॉट इट. यहाँ पे 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 डाल दोगे, तो यूनिट प्लेस पे कौन आएगा? उससे तो छोटा कुछ है ही नहीं. तो लीस्ट नंबर दैट कैन कम इन द 10th प्लेस वुड बी 1. क्लियर? तो यहाँ पे कितने केसेस? 6 केसेस. यहाँ पे 5 अप टू 1 केसेस. तो 7 के लिए टोटल कितने नंबर्स होंगे? 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 6. तो ये टोटल आंसर कितना होगा? 6 into 7 by 2, n into n plus 1 by 2. तो 6 into 7 by 2 का वैल्यू कितना होगा? 42 by 2. 42 by 2 का मतलब है 21. इस तरह जब आप 8 को फिक्स करोगे, तो क्या होगा? यहाँ पे 7 आएगा, टिल 1 तक जाएगा. 7 का करस्पॉन्डिंग नंबर 7 आएगा, 1 का करस्पॉन्डिंग नंबर 1 आएगा. तो 6 into 7 by 2 फर्स्ट वाला है, दैट इज 21, प्लस यहाँ पे 1 से लेके 7 का सम, दैट इज 7 into 8 by 2. इस तरह 9 पे कितना आएगा? 9 का 10th प्लेस फर्स्ट वाला 8 आएगा, 8 का करस्पॉन्डिंग 8 आएगा. सो कैन यू टेल इट विल बी 8 into 9 by 2? गॉट इट? इजी. सो 21, 8, 7, 56 by 2, that is 28, 8, 9 is 72 by 2, that is 36. दैट इज टोटल सम आपको निकालना है. टोटल सम कितना आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो. 8, 6, 14, 1, 15, 5 आना चाहिए आंसर. 5 यहाँ पे है, 85. आई होप यू हैव गॉट इट. देखो, इस चीज से ना भागना मत.
कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश करना है। गॉट इट? इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट एट द फर्स्ट गो, यू नीड टू गिव मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड इट, नहीं तो कितने दिन भागोगे? एक पॉइंट पे तो समझना है ना। इफ देर इज अ ट्रिक, आई नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रिक टू अप्लाई दैट ट्रिक इन द एग्जाम, राइट? ये कैसे, विदाउट इवन कैलकुलेटिंग, हाउ कैन वी कंक्लूड राइट फ्रॉम द 7 वाला केस, दिस 8 वाला केस एज वेल एज दिस 9 वाला केस? क्लियर? देखो बता देता हूं, अगर 9 का केस लेना है, यहाँ पे 8 आएगा। 8 का करस्पॉन्डिंग कितने नंबर्स केसेस बनेंगे? 8 केसेस बनेंगे। 7 का 7 केसेस बनेंगे। 6 का 6 केसेस बनेंगे। 1 तक 1 केसेस। टोटल को ऐड करोगे 1 + 2 + 3 अप टू 8, दैट इज 8 × 9/2, वही तो लिखे हैं हम। क्लियर? गॉट इट? नाउ लेट अस प्रोसीड टू दिस वन। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5. What does this question number 5 say? There are 24 equally spaced points lying on the circumference of a circle. What is the maximum number of equilateral triangles that can be drawn by taking set of 3 points as the vertices? Obvious सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो 3 पॉइंट्स ही लोगे, तो ये क्यों दिया है पता नहीं। देखो, आपके पास सर्कल है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री का काम आएगा। अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होगा, उसका हाफ 30 है। अगर ये वाला 60 है तो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल चाहिए। 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, 360 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल। अगर 24 पॉइंट्स है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स। तो यहां पे 8 पॉइंट्स आना चाहिए, यहाँ पे 8 पॉइंट्स आना चाहिए, यहाँ पे 8 पॉइंट्स आना चाहिए, तभी जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इट विल सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। दैट मींस 1 के बाद आपको कितना गैप देना चाहिए? 8 पॉइंट्स का गैप, तो 9 आएगा। 9 के बाद 8 पॉइंट्स का गैप कितना आएगा? 17 आएगा। गॉट इट? उस तरह 2 से 10, 17 से 18, कहां तक मैक्सिमम जाएगा? 24 तक, क्योंकि 24 पॉइंट्स है। 24 का करस्पॉन्डिंग ये वाला नंबर कितना आएगा? 16। 16 का ये वाला करस्पॉन्डिंग नंबर कितना आएगा? 8। तो टोटल कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स? 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। गॉट इट? क्योंकि ये फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये सेकंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 वाला थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, 8 वाला 8th इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्लियर? तो टोटल हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स? 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्लियर? नंबर्स के साथ खेलना सीखो। इफ यू कैनॉट प्ले विथ नंबर्स, सीसैट में क्लियर करना टफ हो जाता है। गॉट इट? जब तक आप नंबर्स के साथ खेलोगे नहीं, इट विल बी अ नाइटमेयर टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। देखो, मैं 17 तक पहुंचा, फिर डायरेक्टली जंप किया 24। 24 का करस्पॉन्डिंग नंबर जितना आएगा उतना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। क्लियर? ये वाला लॉजिक कैसे पता चलेगा? पीवाईक्यू सॉल्व करके ही पता चलेगा। क्लियर? मल्टीपल पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, नॉलेज बेस बनाओगे, उसी बेस को एग्जाम में यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 6. For a sports meet, a winner's stand comprising 3 wooden blocks is in the following form. There are 6 different colors available to choose from, and each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no 2 of them has the same color. No 2 of the same color मतलब सारे यूनिक होंगे. In how many different ways can the winners stand be painted? 6 कलर्स है, उसमें से आपको 3 सिलेक्ट करना है, और 3 को अल्टरनेट भी अरेंज कर सकते हो. सो 6c3 इंटू 3 फैक्टोरियल. 6c3 कितना है? दिस इज ऑल्सो नोन है 6p3. इसको अगर कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 फैक्टोरियल. दिस कैंसल्ड. 6 5 30, 4 120. सो टोटल कितना आंसर होंगे? 120. कितना टाइम लग रहा है? बहुत ही कम टाइम. क्लियर? बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको. 6 कलर्स गिवन है, आपको पेंट करना है. कितने पहले तो कलर को सिलेक्ट करोगे ना आप, जब आपका घर का पेंटिंग करते हो ना. 6 फ्लोर से, सर सपोज 3 फ्लोर से, आपको 6 कलर्स आपको चूज करना है आपके पास. उसमें से पहले 3 कलर को चूज करो. when you choose something, when you select something, you use combination. 6c3 कलरिंग करना है, दैट मीन्स अरेंज करना है.
गॉट इट। कलरिंग जब करोगे, बस सिलेक्ट करने से तो कलर नहीं हो जाएगा ना अपने आप पहले कलर्स को सिलेक्ट करोगे पेंट शॉप से, यू ब्रिंग दैट कलर टू योर होम, देन यू पेंट इट मतलब यू अरेंज इट, वंस यू अरेंज इट यू डू 3 फैक्टोरियल, क्लियर। 6p3, 6c3 विल बी कैलकुलेटेड इनटू 3 फैक्टोरियल करोगे, क्योंकि आप अरेंज कर रहे हो, तीनों को अरेंज करना है 3 फैक्टोरियल, क्लियर। 120। एक डिस्क्लेमर, जब जब तक मैं पीएनसी क्लासेस लूंगा, लेक्चर्स लूंगा, एक डिस्क्लेमर जरूर बताऊंगा। ओके, वो क्या है? पीएनसी क्लासेस जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस। आई कैन अंडरस्टैंड, ये पजल्स वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा कि ये ऐसा है, नहीं, ये 3 फैक्टोरियल के लिए एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड पीएनसी क्लासेस में है, ठीक है। So wherever you have, if you have done PNC classes, do revise them to attend this lecture, or else you might find this very difficult, and फिर बताओगे जो बता रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। So that is why one advice: do your lectures, complete your revision, then only see these classes. Okay, then only you can understand what is going on. Let us go to the next question, and it will be the last question of lecture number 30. Question number 7. The number of times the digit 5 will appear while writing the integers from 1 to 100. Similar type question. कौन सा वाला? कितने डिजिट्स है, बट यहाँ पे क्या है, डिजिट 5 की बात हो रहा है। 1 से लेके 1000 के बीच में, 1 से लेके 1000 के बीच में आप नंबर्स 1 से लेके 10 तक एक कर सकते हो, 9 तक, फिर 10 से लेके 99 तक, फिर 100 से लेके 1000 तक, यानी 999। इसके बीच में भी बहुत सारे केसेस है। इफ आई पिक 1 to 9, इसमें 5 कहाँ पे आ रहा है? एक बार आ रहा है, दैट इज द 5 डिजिट। 10 से लेके 99 के बीच में 3 केसेस बनेंगे, 5 से शुरू होने वाले नंबर, 5 से एंड होने वाले नंबर, 55 एक नंबर। यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे? 5 से शुरू होने वाले नंबर, 5 बीच में आने वाले नंबर, 5 से एंड होने वाले नंबर, और क्या क्या केसेस? 55 से शुरू होने वाले नंबर, 55 से एंड होने वाले नंबर, 5 गैप 5 वाले नंबर, और क्या केसेस बनेंगे? 555 वाले केसेस, सबको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कितने केसेस, कितने 5 आएंगे? एक बार 5 आएगा। यहाँ पे 5, बस 5 से, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, स्टार्टिंग विथ 5 ओनली कितने केसेस बनेंगे? यहाँ पे कौन कौन आ सकता है देखो, स्टार्टिंग विथ 5, यहाँ पे कौन आएगा? 0 आ सकता है, 0 से लेके 9 सारे नंबर आ सकते हैं, 10 केसेस एक्सक्लूडिंग 5, टोटल 9 केसेस। तो कितने नंबर्स टोटल होंगे? 9 नंबर्स। यहाँ पे कितने नंबर्स? 0 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, टोटल 10 केसेस में से 2 हट जाएंगे, कितने नंबर्स? 8 नंबर्स। यहाँ पे कितने नंबर्स? 1 नंबर। यहाँ पे कितने केसेस? यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा बताओ? यहाँ पे सेकंड, इस वाले पोजीशन पे 5 नहीं आएगा, बाकी सारे आ सकते हैं। 9 केसेस, 9 केसेस, दैट इज 81 केसेस। यहाँ पे 8 केसेस, 9 केसेस, 72 केसेस, वी हैव डन दिस इन क्लास ऑल्सो। यहाँ पे 8 केसेस, 9 केसेस, 72 केसेस। यहाँ पे 5 से शुरू, कितने केसेस? 5 को छोड़ के बाकी सारे, टोटल कितने आएंगे? 9। यहाँ पे कितने आएंगे? 0 और 5 को छोड़ के बाकी सारे 8, यहाँ पे 9, और यहाँ पे एक केस। सारे केसेस मिल गए, टोटल नंबर कैलकुलेट करो। 5 कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, 1। 5 कितने बार आ रहा है? यहाँ पे एक बार आ रहा है, 9। 5 कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, 8। 5 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, नंबर कितने हैं? 1 इंटू 2 होगा, क्लियर। 5 कितने बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, नंबर कितने? 81, तो टोटल 81। 5 कितने बार आ रहा है? 72 टाइम्स आ रहा है, तो नंबर कितने? 72। 5 एक बार, अगेन 72। 5 दो बार, नंबर्स कितने? 9, 18। 5 कितने बार? 8 टाइम्स, दैट मीन्स 8 डिजिट्स, 5 दो बार 16। इस तरह यहाँ पे 18 प्लस, ये एक नंबर आ रहा है लेकिन 3 बार 5 आ रहा है, +3। टोटल इवेल्युएट करो, 9 1 10, 10 10 20, 20 हो गया, प्लस ये कितना हो गया? 144, राइट। 144 16, दैट विल बी 160, प्लस 81, और ये 18 18 36, +3 39, 39, ये 81 40 120। सो कितना हो गया? 160 280 280, और ये 20 300। सो योर आंसर इज 300।
Bit tough, requires time to understand. I hope you have got it, or else I'm explaining it again. थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, मैं बता देता हूँ फिर से एक ब्लैंक स्पेस पे। देखो, 1 से लेके 1000 के बीच में नंबर निकालना है। पहला केस तो आएगा 1 से लेके 10। यहाँ पे 5 कहाँ पे आ रहा है? एक जगह आ रहा है। हाउ मेनी फाइव्स, मैं पूछ रहा हूँ कितने नंबर से, आप बताए 5 है, एक ही नंबर है। हाउ मेनी फाइव्स? 1, लिखे 1 प्लस 11, सॉरी ये 9, 10 से लेके 99 के बीच में 5 कहाँ कहाँ आ सकता है? ऐसा नंबर मिलेगा जो 5 से शुरू हो रहा है, एक ही बार आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है। ये दो केसेस, 5 दो बार भी तो आ सकता है। यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे? टेल मी अ नंबर विच बिगिंस विथ 5 ओनली। तो आप बताओगे कि सर 5 तो फर्स्ट वाला फिक्स हो गया, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है? सर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। 5 नहीं आएगा, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। टोटल गिनो कितने हुए? 9 केसेस। 9 केसेस। हाउ मेनी फाइव्स? इन ऑल दिस 9 केसेस यू विल हैव 1 5 ईच। सो टोटल हाउ मेनी फाइव्स? 9 फाइव्स। क्लियर? यहाँ पे ये अलग केस है, ये फर्स्ट वाला पोजीशन है। फर्स्ट पे तो जीरो नहीं आ सकता ना, जीरो आएगा तो सिंगल डिजिट बन जाएगा, ये तो 2 डिजिट नंबर है। जीरो नहीं आएगा। 0 से लेके 9 बस गिन लो कितने नंबर से, 10 नंबर से। 10 में से 0 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, कितने केसेस? 8 केसेस। बस ये ध्यान रखो, 10, 8 केसेस। हाउ मेनी 5 ईच? 1 5 ईच। टोटल आंसर 8। यहाँ पे कितने केसेस? सर एक ही केस है 55, हर एक केस में दो दो 5 है, तो कितना हुआ? 2। अभी 3 डिजिट नंबर पे चलो। 3 डिजिट में एक बार 5 आ सकता है। यहाँ पे कितने केसेस? फर्स्ट इस वाले पोजीशन में कौन कौन आ सकता है? 5 को छोड़ के सर सब आएंगे। 9 इंटू, काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे कितने केसेस? 9 केसेस। सर 81 आएगा। 81 में एक ही बार 5 आ रहा है, तो 81। यहाँ पे फर्स्ट वाला पोजीशन है ना सर, 8 केसेस होंगे। क्यों? 0 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। यहाँ पे 9 केसेस, टोटल 72 केसेस। एक बार 5 आ रहा है, 72। सर यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, सो 72। 72 प्लस, सर दो दो बार 5 भी तो आ सकता है। ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस। सर यहाँ पे कितने केसेस? सर लास्ट वाला पोजीशन है 9 केसेस, 9 पे इंटू 2 कर देंगे क्योंकि दो बार 5 आ रहा है। यहाँ पे अगेन 9 केसेस, क्योंकि मिड वाला पोजीशन है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जीरो नहीं होगा, तो अगेन 18। यहाँ पे कितने केसेस? सर फर्स्ट वाला पोजीशन है ना, 0 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, कितने केसेस? 8 केसेस। 8 में कितने 5? दो दो बार 5, तो 16 प्लस थर्ड वाला केस 555। कितने केसेस? सर 1 केस, 555 प्लस 3, सबको ऐड करो, आंसर 300। टफ क्वेश्चन, बट वही समझ पाएंगे जो बेसिक समझे हैं। क्लियर? आई होप you have got it, you have enjoyed the lecture. So we'll see you again in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye. Take care everyone. Jai Hind.